Hello students. Now, before starting the video lecture, there are some instructions to be followed while watching the video lectures. First, students are supposed to see the videos 2 to 3 times with the help of their textbooks or any reference materials. Second, student need to copy down the important points in paper. Third, a student should use earphones or headphones if available for sound clarity. Fourth, student should note down all the queries which will be solved during the class sessions. Now, let us start the first chapter of class 9, that is chapter 8, motion. Now, before starting, let us try to understand some basic concepts. The first question comes, when the body is said to be at rest. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. Okay, for example, a book kept on a table is at rest with respect to the walls of the rooms. Okay, so this is rest. Then when the body is said to be in motion? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding. For example, a car running is in motion with respect to the object on the roadside. Okay, so this is rest and this is motion. Now, rest and motion are relative terms. Now we have to explain this concept. Now, what do you mean by that? मतलब ऐसा है, an object may be at rest relative to one surrounding object and at the same time it may be in motion relative to the same other object. Okay, we'll understand this statement by using an example. Okay, just say a passenger traveling in a bus feels that trees and buildings on the roads are moving backward. मतलब जब हम अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को हम सी ऑफ करने जाते हैं, ओके, तो जनरली हम देखते हैं कि जो बस में व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और जब बस चल पड़ती है तो उसके लिए जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे ट्रीज़ हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो जब भी बस आगे मूव करेगी तो उसके लिए वो चीज़ें मूव करेगी. ठीक है, मतलब ट्रीज़ और बिल्डिंग उस पैसेंजर के लिए मूव करेगी. बट a person standing along the roadside observe these trees and buildings to be at rest. Okay, मतलब जब हमारे फ्रेंड को बस स्टॉप में सी ऑफ करने गए तो हम देख रहे हैं कि वही ट्रीज और बिल्डिंग्स मूव नहीं कर रही, तो किसी के लिए वही चीज़ मोशन में है. ओके, और वही चीज़ हमारे लिए रेस्ट पे है. ओके, so now let us try to understand the statement once again. An object may be at rest relative to one surrounding object and at the same time it may be in motion relative to some other object. Therefore, rest and motion are relative terms. Okay? Now, describe the various types of motion observed in bodies. There are 3 types of motion. First, translational or translatory motion. In this type of motion, in which a body moves along a straight line or curved path, is called
translational or translatory motion. For example, a train moving on a straight rails, okay, and a bicycle taking a turn along a curved road. So whenever a body travels along a straight line or a curved path, it is called translational or translatory motion. Second motion is rotatory motion. In this type of motion, the different particles of the body revolve in a circle around the same axis of rotation, which is called rotatory motion. For example, an electric fan or a motion of a spinning top. Third motion is oscillatory or vibratory motion. In this type of motion, the body performs the same type of movements repeatedly along the same path is called oscillatory or vibratory motion. For example, the motion of pendulum of a clock or the needle of a sewing machine. So these are the three different types of motion observed in bodies. Now, what is physics? Like all other sciences, physics is based on experimental observations and quantitative measurements. तो फिजिक्स में जनरली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं और उसके बाद उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स किया जाता है. ओके, तो ये मेजरमेंट्स क्या चीज़ होती है? मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी. यानी हम एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को निकालेंगे बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, टेक अ बुक. ओके, हमने एक बुक लिया और साथ ही साथ हमने एक रूलर या एक स्केल लिया और अब हम उस स्केल से उस बुक का लेंथ निकालेंगे. मान के चलिए बुक का लेंथ 20 सेंटीमीटर आया है. ओके, तो अभी आपने जो, ठीक है, लेंथ निकाला है बुक का 20 सेंटीमीटर, तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी आपने किया एक बुक और एक स्केल के साथ और 20 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू ले आए, ये पूरे प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं. तो इस एग्जाम्पल में द अननोन फिजिकल क्वांटिटी कौन हुआ? द लेंथ ऑफ द बुक, क्योंकि हमें उसका लेंथ पता नहीं था इसलिए वो अननोन फिजिकल क्वांटिटी हुआ. रूलर या स्केल नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुआ यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी. 20 जो आया हम उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं या वैल्यू. 20 इज मैग्नीट्यूड या वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ द बुक लेंथ. ओके, तो physics is a branch of science which deals with experimental observations and measurements. Okay, now physical quantity दो प्रकार की होती है. Physical quantity अब भी देखा, जो भी quantities हम measure कर सकते हैं उसे physical quantities कहते हैं. Okay, तो physical quantities दो प्रकार की होती है. एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज. तो चलिए दोनों को साइमल्टेनियसली देखते हैं. व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? गिव एग्जांपल्स. और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? गिव एग्जांपल. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज, मतलब हम चाहे तो एक क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं या बहुत सारी, इसलिए ऐसा लिखा है द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज
विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसके लिए सिर्फ एक वैल्यू लगती है along with the unit and not the direction for their complete description is called scalar quantity. ओके मतलब एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज जिसे सिर्फ एक वैल्यू एक यूनिट लगती है पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके हम एक एग्जांपल लेंगे अभी। उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स बोथ the magnitude or the value along with the unit and the direction for their complete description are called vector quantities. ओके तो जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लगता है ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ओके नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड with the help of example. अब स्केलर क्वांटिटी, ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ओके तो 1 इज अ वैल्यू, 1 इज अ मैग्नीट्यूड एंड किलोमीटर इज अ यूनिट। सो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, तो ये जो है द डिस्टेंस विल बिकम, मतलब जिसमें सिर्फ वैल्यू है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। आई एम नॉट टेलिंग द डायरेक्शन। पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल में कुछ ऐसा कहूँ कि मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और साउथ डायरेक्शन में है, तो वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आई एम टेलिंग द डायरेक्शन, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड लगता है उसे हम स्केलर कहते हैं, और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगता है हम उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में कुल मिला के 5 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। वो 5 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके सो वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है डिस्टेंस। Now, define distance and state their CGS and MKS unit. CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और MKS बोला तो मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके नाउ डिस्टेंस। Distance is the length of the actual path traveled by the body between the initial and the final position। मतलब जब भी बॉडी एक्चुअली ट्रैवल करेगी उस पाथ से फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, तो उस पाथ के लेंथ को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है। नाउ द CGS यूनिट, that means the centimeter, gram and second system of unit. The CGS unit of distance is centimeter, okay, and the MKS unit मतलब मीटर, किलोग्राम and second system of unit is meter, okay. Now distance is a scalar quantity because for its measurement we only require the magnitude part and not the direction part. Okay, next, distance is always positive. Okay, distance हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम ऐसा तो कभी नहीं कहते कि मेरा घर -5 किलोमीटर दूर है। ओके सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव।
Now, distance may be same or different for the path chosen. मतलब अगर हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते में गए तो हो सकता है दूसरे रास्ते का डिस्टेंस भी सेम हो या डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाए तो दूसरा रास्ता पहले वाले रास्ते से सेम भी हो सकता है डिस्टेंस में लेंथ वाइज, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, तो दैट वाज द पॉइंट। नाउ लेट अस प्रोसीड to the second concept, that is displacement. To define displacement and state their CGS and MKS unit. Now displacement. Displacement is the shortest distance or straight line path drawn from the initial position to the final position. Okay, तो displacement जो है that is the shortest distance or a straight line path. ठीक है, यानी जहाँ से हमने शुरू किया और जहाँ हमने अपना मोशन ख़त्म किया वहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। द CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर एंड MKS यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसमें वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी लगेगा। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर से एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। सो इन द फर्दर लेक्चर्स we'll discuss more on this. And last, displacement between the 2 point is always the same. मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। ओके, सो दैट वाज द पॉइंट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट। Now, with a suitable example, explain the terms distance and displacement. तो यहाँ हम दो केसेस देखेंगे और इन दो केसेस से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस। तो हम एक डायग्राम भी देख रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। Consider a body moving in a plane as shown in the figure. तो let A be the initial position of the body. मतलब A हमारा starting point होगा। B will be the position after some time. तो कुछ देर बाद हमारी बॉडी A से निकलकर B पे पहुंचेगी, तो B वो पॉइंट होगा कुछ देर बाद। पॉइंट C जो है that will be the final position of the body. ठीक है, now let us calculate the distance and displacement for this particular diagram. तो आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारी बॉडी जब A से B जाती है तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे उसे 3 मीटर लिया है, और जब बॉडी B से C जाएगी तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर वैल्यू लिया है 4 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस डायग्राम। नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड द डिस्टेंस बिटवीन BC। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं AB का डिस्टेंस 3 मीटर है और BC का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर दैट बिकम्स 7 मीटर। तो बॉडी ने एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल 7 मीटर। ठीक है, बॉडी एक्चुअली चल के गई है, तो दैट बिकम्स द डिस्टेंस। नाउ हम इसी डायग्राम का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। नाउ जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं
तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, लाइन ए सी, ए से सी हमने देखिए एक लाइन ड्रॉ किया है। तो नाउ वो अब एक ट्राइंगल बन चुका है, अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सी, मतलब लेट अस फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिकॉज ए सी क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। सो द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी ए सी। तो हम यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह हम डालेंगे 3, तो 3 स्क्वायर प्लस बी सी की जगह 4, तो 4 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बिकम्स 3 स्क्वायर का 9, 4 स्क्वायर का 16, 9 प्लस 16, तो ए सी स्क्वायर आया हमारा 25। पर हमें ए सी निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए सी का वैल्यू हुआ 5 मीटर। तो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं हमारा डिस्टेंस 7 मीटर था, जो एक्चुअल पाथ हम ट्रैवल करके गए, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 मीटर है। ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो इस एग्जाम्पल में हमें ये सीखने मिल रहा है द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो 5 मीटर आया है, दैट इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो कि 7 मीटर था। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट केस। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकेंड केस। नाउ इन द सेकेंड केस you can again see the diagram. Now consider the body moving along a straight line in the same direction as shown in the figure. तो इस बार अब हमारा डायग्राम आप देख रहे हैं, इट इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है, कुछ देर बाद बी पे जाएगी और फाइनली वो सी तक पहुंचेगी। तो एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने के लिए, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग ने नंबर्स भी वही रखे हैं। तो आप देख सकते हैं ए से बी 3 मीटर, बी से सी 4 मीटर। ठीक है, तो हम भी इस फिर से डायग्राम का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जैसे हमने जभी वाले डायग्राम में के लिए निकाला था। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी will be again the distance between AB plus the distance between BC. तो AB का डिस्टेंस है 3 मीटर, BC का डिस्टेंस है 4 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी का फाइनल आंसर आएगा 7 मीटर। नाउ अब हम इस डायग्राम का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। नाउ इस डायग्राम में ऑलरेडी हम देख रहे हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट हमारा सी है, और दोनों ही स्ट्रेट लाइन में है। जब भी ऐसा होता है, ओके, तो आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के लिए हमने सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एंड दैट लाइन इज ए सी। तो इस डायग्राम का डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी। तो इसीलिए हमारा AC का आंसर आता है 7 मीटर। इसके पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ रहा था, जिसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, और यहाँ जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर आ रहा है 7 मीटर। तो इस केस से हमें ये सीखने मिला कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं। केस 1 में हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, ओके, और केस 2 में सीखा
डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। तो इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो गया तो फिर हमारा डेफिनेशन गलत हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। तो डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। नाउ हमसे हमेशा अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एन ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस। ओके, एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस मूव किया है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, देन सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। तो आंसर होगा, अगर बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, तो उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। द आंसर इज यस। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ पर्सन थ्रोज अ बॉल अपवर्ड थ्रू अ हाइट h एंड कैचेस बैक द बॉल। तो एक व्यक्ति ने बॉल को ऊपर फेंका, एक हाइट तक बॉल गया और बॉल वापस लौट के नीचे आ गया और उस इंसान ने उस बॉल को कैच पकड़ लिया। तो हम क्या देख सकते हैं इस एग्जांपल में? द बॉल हैज कवर्ड द डिस्टेंस, ठीक है, हाइट अप, मतलब जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। तो हम दो बार हाइट को ऐड करेंगे, तो h अप प्लस h डाउन। ओके, तो दैट बिकम्स 2h, मतलब जाना भी h ऊपर और आना भी h नीचे, तो h प्लस h दैट बिकम्स 2h। तो इस एग्जांपल में डिस्टेंस क्या हुआ? 2h। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड, जहाँ से बॉल ने शुरू किया था, ओके, बॉल वापस वहीं आ गया, यानी जहाँ से हमने बॉल को फेंका था बॉल हमारे पास वापस आ गया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंड पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट हैज़ बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2h, पर उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। सो ये था हमारा कंसेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना और फाइनली ये भी जाना कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस।